Hello, children. So, we are going to start a new chapter today. Before starting the chapter, let's see what you can tell about these two pictures over here, this picture and this picture. So, here we see a man who is very, very tired, and same goes with this picture also. The person is tired of working on computer. So, why are they tired? They must be tired because they have lost all their energy while working or while walking or whatever work they have done. So let's think what with by doing what can they gain their energy back. So there may be many things. So they can sleep. That's right. They can sleep, or they can just rest, or they can eat. They can eat, right? But what they can eat, let's see. So here are all the things that he can eat, or maybe he can eat anything else also. Let's see what are these things. So here we see it's cabbage, or bread, cheese, and chicken, and carrot. It's the butter, then banana, carrot, banana, again banana, and then broccoli. Then we have the things which kids like the most: French fries and sausages, pizza, popcorn, any beverage, any cold drink or soft drink, and then burgers. Here are eggs and same. So it's the chapati and watermelon and water and milk, ice cream, pineapple, here's the muffin. So here are all the things that we eat, or possibly we can eat. So whatever we eat is called a food. Whatever we eat is called a food. जो भी हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए या एनर्जी के लिए, या फिर जो हमने पहले देखा था कि जो दो लोग टायर्ड थे, तो दे कैन ऑल्सो you know they can also eat food and gain energy. तो आगे चलते हैं. So here is our chapter 6 that we are going to start today. The chapter's name is Food We Eat. Let's move forward. So what is food? Food is something that we eat or drink to stay alive and gain energy. Something, कुछ भी ऐसा जो हम खाते हैं या पीते हैं जिंदा रहने के लिए और एनर्जी लेने के लिए, उसे फूड कहते हैं. तो फूड का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम उसे सिर्फ खा रहे हैं. अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम पी भी रहे हैं तो वो भी फूड के अंदर आता है. तो फूड में सिर्फ खाने की चीजें नहीं होती, उसमें पीने की भी चीजें आती हैं. अगर हम चपाती खा रहे हैं और फिर उसके बाद हम राइस खा रहे हैं, हम कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, और अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, तो अगर हम उसके साथ कोका कोला टाइप या पेप्सी या पानी, या इफ वी drink milk or coffee or tea, they all are food. Everything that we eat and that we drink to stay alive. Alive मतलब जिंदा रहने के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए. एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? कोई भी काम करने के लिए. कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. खेलने के लिए, टू प्ले, टू वर्क, इवन आपको बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. इफ यू हैव इट ईटन फॉर डेज, तो आपको बहुत टायर्डनेस, बहुत थका हुआ फील होगा. देन यू वोंट बी एबल टू टॉक, सो यू विल हैव टू ईट फूड टू गेन एनर्जी. So
Anything that we eat or drink to stay alive and gain energy is food. तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज फूड, फूड होता क्या है। तो उसमें एक लाइन और थी, हमें अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एंड टू गेन एनर्जी, एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए होता है। तो व्हाई डू वी ईट फूड, सेम क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। तो इट सेज फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देता है टू वर्क एंड टू प्ले। वैसे डू यू नो दैट आफ्टर एयर एंड वाटर, फूड इज द थर्ड बेसिक थिंग दैट वी नीड टू स्टे अलाइव। हमें एयर चाहिए, हम सांस नहीं लेंगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। देन उसके बाद हमें वाटर चाहिए। वाटर हमें मिनिमम 7 to 8 ग्लासेस पर डे पीना होता है ताकि वी स्टे फिट एंड यू नो आवर बॉडी इज वर्किंग प्रॉपरली। थर्ड नंबर पे वी हैव फूड। सो फूड इज वेरी नेसेसरी टू स्टे अलाइव एंड गेन एनर्जी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So, do we eat same food? Is food same for all? You may think that, okay, let's start from, okay, if you have your uh, younger siblings, you have a younger sister or a brother, you may think, okay, if a newborn baby, they have no teeth, okay, they eat different type of food, okay, they are either they drink only milk, right? They drink milk, then, or they usually eat things like cereals, like Cerelac, which is very, very easy to swallow. Okay? उसको चबाना नहीं पड़ता, तो वो easily अंदर चला जाता है क्योंकि उनके दांत नहीं होते, they don't have teeth. सेम गोज विद द ओल्डर पीपल। आपकी दादी दादू जो होंगे, नाना नानी जो होंगे, तो उनके भी जो टीथ होते हैं, अभी जो छोटा बच्चा होता है उसके टीथ आए नहीं होते हैं, इसलिए उसे ये सब खाना होता है जो लिक्विड फूड होते हैं, जैसे खिचड़ी हो गई। तो ये सारी चीजें जब ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे दांत गिरने लग जाते हैं। ओके, तो जब वो हो जाता है तो सेम हमारे बच्चों जैसा हो जाता है। तब भी जो ओल्ड पीपल होते हैं, दे कंज्यूम फूड्स दैट आर लिक्विड, जो उनको चबाने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे यही, जैसे अभी बताया, खिचड़ी होती है, या फिर यू हैव ओट्स विच इज कॉल्ड दलिया। ओके, तो और फिर उसके बाद हम हैं जो, ठीक है, वी जो हम लोग हैं जो ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहीं होते, एंड वी आर नॉट ओल्ड, सो वी हैव टीथ। जो ये सब होते हैं, तो क्या ये सब भी सेम फूड खाते? If you have a friend, let's imagine something. If you have a friend that stays in, suppose, Kerala, okay, you live in Odisha and your friend lives in Kerala. Do you think he or she eats the same food that you eat? Or if you say you have your uncle, okay, and your uncle, you live in Odisha and your uncle lives in Rajasthan. So do you think you people eat the same thing? And if you eat the same thing, do you cook them with same recipes? तो यहाँ पे जो मैं पूछ रही हूँ वो ये पूछ रही हूँ कि क्या हम सब सेम खाना खाते हैं? जैसे आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हम सेम खाना खाते हैं या हम अलग अलग खाते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई एक ही चीज खा रहे हैं, लेकिन हमारे सबके घरों में वो अलग अलग तरीके से बनती है, क्योंकि अलग अलग लोग बनाते हैं उसे, और उनकी अपनी चॉइसेस होती है, उनकी अपनी लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं, तो वो वैसे ही बनाते हैं उसको। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि डू वी ईट सेम फूड एंड इज फूड सेम फॉर ऑल? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सोच के अपनी कॉपी में लिखेंगे कि क्या
हम लोग सेम खाना खाते हैं, और अगर हम सेम खाना खाते हैं तो क्या वो टेस्ट भी सेम करता है? और जो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या फिर दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, वो क्या आप जो खाना खाते हैं, क्या वही वो खाना खाते हैं? और अभी जो मैंने केरला वाला एग्जांपल दिया, तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो उड़ीसा में नहीं रहता है, वो कहीं और रहते हैं और वो कोई और टाइप का खाना खाते हैं, तो आप वो भी लिखेंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक होम असाइनमेंट था जो मैंने आप सबको दिया था। तो ये होम असाइनमेंट था कि कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, एंड यू हैव टू पेस्ट दिस पिक्चर्स इन योर नोटबुक. So this is the home assignment for today's class, and we'll continue with the next part of the chapter in our next class.